Hello students, now we will solve exercise 1.6 solution of chapter set plus 11 NCERT maths. Okay, so first question is what if x and y are two sets such that a number of element of x 17, number of element of y 23, number of element x union y equal to 38, then find out number of element x intersection y. सीधा formula डालो और निकालो. What is the formula? x number of element x union y is equals to what? Number of elements x plus number of elements y minus number of elements x intersection y. Just put the value 38, n of x 17 plus 23 minus n of x intersection y. Therefore n of x intersection y is equals to 0 40 minus 38, that means 2. Okay, now question number 2. If x and y are two sets such that x union y has 8 elements, that means what? Number of x union y is equals to 18. X has 18 elements, that means number of x is equals to 8. Y has 15 elements, number of y is equals to 15 elements. Does x intersection y have? So find it out. Therefore x n of x union y equal to n of x plus n of y minus n of x intersection y. So put the value 18, then 8 plus 15 minus n of is x intersection y. Okay, n of x intersection y is equals to 23 minus 18, that means what? 5. Okay, so n number of elements of x intersection y is 5. Okay, doesn't have, therefore we should not write the answer. This is the answer because this is 1 marks question. Don't waste too much time for it. So pause the video to note it down. Now question number 3. In a group of 400 people, okay, 250 can speak in Hindi, okay, and 200 can speak in English. टोटल 400 पीपल है, उसमें से 250 हिंदी बोल सकता है, 200 इंग्लिश बोल सकता है. यहाँ पे देखो 250 और 200 कितना होगा? 450 टोटल. यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 400. गलत है? नहीं. एक इंट्रोडक्शन में ऐसा केस मिला था, गलत नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी में 250 कौन कौन है? जो सिर्फ हिंदी जानता है वो है, और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है वो भी है. इसीलिए दिया हुआ है ना, कैन स्पीक इन हिंदी. यहाँ पे तो सिर्फ हिंदी में कितना वो तो नहीं दिया हुआ है. सिर्फ हिंदी में कितना वो तो यहाँ पे हिंदी ओनली नहीं लिखा हुआ है ना. इसका मतलब क्या? हिंदी कौन कौन जानता है? जो सिर्फ हिंदी जानता है वो भी है, और जो दोनों लैंग्वेज जानता है, हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है, वो भी इसमें है. इसीलिए ये टोटल इससे बड़ा ज्यादा आ रहा है, तो इसका टोटल ऐसे नहीं करना है. ठीक, ये समझने के लिए. तो इसमें कौन कौन है? इसमें जो हिंदी जानता है वो है, जो इंग्लिश जानता है वो है, और जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है वो है 400 में. दैट मीन्स वो क्या है? दैट मीन्स लेट द सेट ऑफ हिंदी स्पीकर equal to A, and Hindi speaker and English speaker. Okay, let the set of Hindi speaker and English speaker be A and B respectively. Okay, respectively. Therefore
नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B इज इक्वल्स टू 400। कैसे? 400 में जो हिंदी जानता है वो भी है, इंग्लिश जानता है वो भी है, और दोनों जानता है वो भी है। तो A का एलिमेंट B का एलिमेंट और दोनों का कॉमन एलिमेंट वो क्या होता है? A यूनियन B। ओके, देन 250 can speak in Hindi, therefore number of elements of A is equals to 250। number of elements of B, okay, B क्या है? English speaker, set of English speaker क्या है? number of elements 200। फाइंड क्या करना है? how many people can speak both Hindi and English? both Hindi and English means both Hindi and English, दोनों का कॉमन, हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश का कॉमन, कि ऐसा कितना सारा आदमी है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है। दैट मीन्स इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो n ऑफ A इंटरसेक्शन, अच्छा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो पहले, 400 minus n of A equal to 250 plus n of B is equals to 200 minus n of A intersection B. Okay, now n of A intersection B, 450 minus 400, that means 50. Okay, clear? Now question number 4. If A's and T are the two sets such that A's has 21 elements, so therefore n of S is equals to 21 and T has 32 elements, n of T is equals to 32, and A's intersection T has 11 elements, number of elements A's intersection T, how many? 11 only. Okay, how many elements does A's in union T? That means what I have to find out? A's union T. Okay, to find it out, A's union T is equals to number of element of A's plus number of elements of T minus number of elements A's intersection T. Okay. Now in of A's 21 plus n of T 32 minus 11, that means 3, 5, 11, that means 2, 42. Okay, so pause the video to note it down. Now question number 5. If X and Y are two sets such that X has 40 elements and X union Y has 60 elements. Okay, so first of all, what we can write? Number of element of X. X has 40 elements. Okay, X has 40 elements and X union Y has 60 elements. So number of elements X union Y is equals to 60, and then X intersection Y has 10 elements. So number of elements X intersection Y is equals to 10 elements. Okay, then how many elements does Y have? That means we have to find out what? Number of elements of Y. So X union Y, number of elements of X union Y equal to number of element of X plus number of element of Y minus number of element X intersection Y. Okay, put the value. X union Y equals to 60, X number of X 40 plus number of Y we have to find out, and number of 10. That means n of Y is equals to what? 60 minus 40 plus 10. That means 60 minus 40, 20 plus 10, 30. Okay, so how many elements does it? Therefore Y has 30 elements. Number 6. In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person like
likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? Now listen, total 70 people हैं. 70 people में से 37 कॉफी को लाइक करता है, 52 क्या करता है, 52 टी को लाइक करता है, चाय को लाइक करता है. तो बोल रहे हैं कि और क्या बोल रहे हैं, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स. मतलब यहाँ पे 70 पीपल में से ऐसा कोई भी पीपल नहीं है, मतलब कोई भी आदमी नहीं है जो कुछ ना पसंद करता हो. 70 लोगों में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ना चाय पसंद करता है ना कॉफी पसंद करता है. मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ पसंद करेगा ही करेगा. तो भाई ये तो सीधी सी बात है कि 70 पीपल में से ये दिया हुआ है कि 37 लाइक्स कॉफी, 52 लाइक्स टी. तो ये इन दोनों को जोड़ के देखो, इन दोनों को 89 आएगा. तो 89 70 से तो ज्यादा है. तो ऑब्वियसली बात है, तो ऐसा कोई आदमी है ही नहीं. ठीक, मतलब है ही नहीं क्या कि जो कुछ चीज पसंद ना करे. ठीक, तो और एक चीज यहाँ पे 70 पीपल है और यहाँ पे ज्यादा हो रहा है. देखो दोनों को जोड़ के देखो ज्यादा हो रहा है. तो ये किस लिए ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉफी खाने वाले जो है, इसमें से कोई आदमी कॉफी और टी दोनों पीते हैं. और यहाँ पे टी पीने वाला आदमी जो है, चाय पीने वाला आदमी जो है, वो चाय और कॉफी दोनों पीता है, इसीलिए 52 है. आई बात समझ में? जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे ऐसा. ओके, तो करेंगे क्या? सबसे पहले ग्रुप ऑफ टोटल पीपल 70. अब 70 पीपल में कौन है जो कॉफी पीता है, जो चाय पीता है, और तो कॉफी और चाय दोनों पीता है, ऐसा. दैट मीन्स व्हाट? लेट सेट ऑफ पीपल like coffee and tea are A and B respectively. Okay, respectively. Okay, therefore इसमें कौन कौन है? कॉफी, चाय और दोनों कॉफी और चाय दोनों पीता है, ऐसा आदमी यहाँ पे. therefore नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन ए का, बी का और ए बी दोनों का, ऐसा 70 है. 37 लाइक्स कॉफी, दैट मीन्स कॉफी का क्या लिए हैं? कॉफी का ए. दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 37. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, बी का क्या है? टी का कितना? 52. तो बोल रहे हैं क्या, हाउ मेनी पीपल्स लाइक बोथ कॉफी एंड टी? दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, दोनों में कॉमन है, निकालना है वही. देयरफॉर ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी. जस्ट पुट द वैल्यू 70 इक्वल्स टू 37 प्लस 52 माइनस ए इंटरसेक्शन बी. अब देखो यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, इन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू व्हाट? 9 and 8, 89 minus 70. That means what? 19. Okay, तो 19 people ऐसा है जो कॉफी और टी दोनों लेता है. Okay, so pause the video and note it down. Now question number 7. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only but not cricket? तो सबसे पहले क्या 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 दिया? 65 people में से 40 क्या लाइक करता है? क्रिकेट, और 10 क्रिकेट और टेनिस बोथ. तो therefore given क्या क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट. अच्छा, पहले let A and B be the set of people who like
A cricket and tennis respectively. Okay, let A and B be the set of people who like cricket and tennis respectively. Okay, तो A क्या है? A है क्रिकेट के लिए, तो therefore given क्या है? इन अ ग्रुप 65 पीपल, 65 पीपल का ग्रुप है, तो 65 पीपल में कौन है? 65 पीपल में कौन है? जो सिर्फ क्रिकेट जानता है वो भी है, जो सिर्फ टेनिस जानता है वो भी है, और जो दोनों जानता है वो भी है उसमें। क्लियर? तो सबसे पहले 65 number of A union B and 40 likes cricket A, number of A is equals to what? 40, and 10 like both cricket and tennis, so number of elements A intersection B is equals to A intersection B is equals to what? 10. So what we have to find out? हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा? How many like tennis only but not cricket? तो सबसे पहले n of A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Just put the value. Put the value n of A union B. N of A union 65. N of A 40 plus n of B. N of B we have to find it out. And n of A intersection B 10. That means n of B is equals to what? N of B is equals to what? N of B 65 minus 30. Okay, 65 minus 30, that means 35. तो ये क्या निकला? Therefore 35 में से कौन कौन है? जो सिर्फ टेनिस खेलता है और टेनिस क्रिकेट दोनों खेलता है, वो दोनों मिला के N of B है। पहले भी ऐसा कर चुके हैं। क्लियर? so therefore the people, ये क्या है? the people of like tennis is equals to 35. इसका मतलब क्या था? पीपल ऑफ लाइक टेनिस, जो टेनिस को पसंद करता है। यहाँ पे ओनली मैंने नहीं लिखा हूँ, इसीलिए मैंने इसको स्टेटमेंट में लिखा। यहाँ पे मैंने ओनली नहीं लिखा हूँ। यहाँ पे देखो लाइक क्रिकेट, यहाँ पे ओनली नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या? ओनली नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब क्या? इसमें कौन कौन है? टेनिस जो लाइक करता है, इसमें कौन कौन है? जो सिर्फ टेनिस लाइक करता है वो है, और जो टेनिस और वो दोनों लाइक करता है वो भी तो टेनिस लाइक करता है। जो दोनों गेम लाइक करता है वो भी तो टेनिस लाइक करता है ना, तो वो भी इसमें है। जो बोथ करता है और जो सिर्फ टेनिस करता है, दोनों इसमें है। लेकिन हमको निकालना क्या है? हाउ मेनी टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस जो खेलता है उसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो, तो इसमें से अगर हम जो टेनिस और क्रिकेट बोथ लाइक करते हैं उसको हटा दे, तो मेरा सिर्फ जो टेनिस लाइक करता है वो मेरा मिल जाएगा। आई बात समझ में? जो इसमें कौन कौन है? जो टेनिस और क्रिकेट जो लाइक करता है, मतलब बोथ गेम जो लाइक करता है, उस वाले हिस्से को इस हिस्से से हटा दे अगर, तो मेरे पास क्या बचा रहेगा? सिर्फ जो टेनिस वाला हिस्सा है वो बचा रहेगा। सो देयरफॉर द पीपल हु like tennis only but not cricket, not cricket, क्या होगा? 35 में से जो बोथ गेम लाइक करता है उसको हटा दे। तो बोथ गेम कितना सारा लाइक करता है? ऐसा 10 को हटा देंगे तो 25 क्या हो गया? सिर्फ टेनिस को लाइक करता है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन अ कम्युनिटी 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? So at least
का मतलब क्या होता है, देखो एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसमें 3 और 4 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, और इसमें 5 और 6 एलिमेंट है। अब मैं बोल रहा हूं कि ए और बी रिलेटेड एक ऐसा एक सेट बनाओ जिसमें दोनों सेट में से एटलीस्ट एक सेट का एलिमेंट रहे, एटलीस्ट एक सेट का एलिमेंट रहे। तो अगर मैं मान लूं कि ए सपोज इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ये इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो ये क्या आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो एटलीस्ट कोई सेट आ ही नहीं रहा है, कोई सेट आ ही नहीं रहा है। तो अब मैं ए यूनियन बी फाइंड करूं, तब देखो दोनों सेट आ रहा है, 3 4 5 6, क्लियर। अब मैं ले रहा हूं 3 4 ए और जो बी है वो है 5, ये सेट एक 5 है। अब मैं बोल रहा हूं क्या, नहीं ए ये सेट बी है, तो ए यूनियन इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कुछ नहीं, ले ही नहीं सकते, कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो 5 है। लेकिन अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी, तब क्या होगा, नहीं एटलीस्ट ए का एलिमेंट तो आ रहा है इसमें, तो एटलीस्ट वाला टर्म रहेगा, तो क्या करना है, ए यूनियन बी, यूनियन वाला केस आएगा उसमें। तो अब देखते हैं कि यहां पे क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या फाइंड करना है। ओके, so let 50 people speak. So first of all, let A and B be the set of speaking French and Spanish respectively. Okay, speaking French and Spanish respectively. Now therefore number of A is what, 50, और 50 में कौन कौन है, जो स्पेनिश जो फ्रेंच बोल रहे हैं वो तो है, यहाँ पे फ्रेंच ओनली नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, जो फ्रेंच बोल रहे हैं वो है, और जो फ्रेंच और स्पेनिश जो बोथ लैंग्वेज बोल रहे हैं वो भी इसमें है 50 में। और क्या है, 20 स्पीक स्पेनिश, तो number of B is equals to 20, and 10 speak both Spanish and French, so number of A intersection B, both means common, इसमें क्या है 10, then at least means what we have to find, number of A union B. Okay, so therefore number of A union B is equals to what, number of A plus number of B minus number of A intersection B. Okay, number of A is equals to 50 plus 20 minus 10, that means 70 minus 10 60. So at least कितना सारा people है जो दोनों में से एक लैंग्वेज यूज करता है, कितना पीपल है सर, 60 पीपल है जो दोनों में से स्पेनिश और फ्रेंच में से कोई एक लैंग्वेज जरूर यूज करता है, क्लियर। सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.6. ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड टू मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फर्स्ट सेट. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.